Lovely Transitors Limited manufacture two kinds of transitors, Viz, Shama and Parvana. So we have two brands, Shama and Parvana. Okay. From the following particulars, prepare a statement showing cost and profit per transitor. Okay, per unit. Per transitor means per unit for each of the two brands. See, material is given, wages is given, number of transitors, matlab number of units manufactured and sold during the year ended 31st March 2014 is 4000 and 2400. So units produced and manufactured of Shama 4000. Units manufactured and sold of Parvana 2400. 1400. Yes. Okay. Now next is selling price per transitor, means sale price per unit. That means CPU is given, SPU. Selling price per unit is already given. That is 175 for Shama, and for Parvana it would be rupees 200. 200. Yes. Now they say factory overheads are 100% on wages. See, factory overheads are 100% on wages. So wages is already Same given in amount. the question. Yes, same amount. Wages is already given in the question. Suppose Shama has 1,80,000. So factory overheads are 1,80,000 into 100%. That is 1,80,000, same amount. See how simple it is. Office overheads are 20% of works cost. Can you tell me what do you mean by works cost here? Network cost. Very good. Networks cost. So 20% on networks cost. So whatever my networks cost will be, I will take 20% of that and it will be headed to office overheads. See how simple it is. Okay. Last point, selling and distribution overheads are 10 rupees 10 per transitor. That means CPU is given. Rupees 10 for both of the brands. For Shama also 10, for Parvana also 10. So 10 into CP, 10 into number of units will be done and you will be able to find your amount column. Is it easy? Yes, ma'am. Now, what you have to do is, see, whole sum will be same. Everything will be same. You need to find CP by dividing the number of units. Okay. Now, units production, matlab manufactured and units sold, both are same. 4000 for Shama and Parvana के लिए 2400. मतलब अभी पूरा सम हमको शमा को डिवाइड किससे करना है 4000 सीपीयू निकालने के लिए और पूरा सम हम परवाना का यूनिट पर यूनिट निकालने के लिए 2400 से डिवाइड करेंगे. ठीक है ना. तो अब आप क्या करेंगे, पूरा सम मुझे आप करके बताएंगे लेकिन दो बार, एक शमा के लिए एक परवाना के लिए. अब जब दो बार करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो क्यों ना हम इसके जैसे करेंगे. देखो इसने कैसे किया है, पर्टिकुलर्स मतलब आपने पर्टिकुलर्स कॉलम में ना कॉमन बना दिया, किसके लिए, शमा के लिए और परवाना के लिए. तो हम पहले कॉलम्स कैसे बनाते थे, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम सीपीयू. ठीक है ना. तो मतलब हम लोग शमा के लिए दो कॉलम्स बना रहे थे और सीपीयू बना रहे थे. तो अब हम कैसे करेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, एक पूरा कॉलम बनाएंगे शमा का, एक पूरा कॉलम बनाएंगे परवाना का. इफ यू डोंट हैव टाइम, ग्रैंड टोटल करने की जरूरत नहीं होती है. ग्रैंड टोटल मतलब यही होता है, देखो मटेरियल 1,40,000 प्लस 96, दो मटेरियल है ना, तो 140 प्लस 96 मतलब 236 आएगा. तो ये तो मुझे दिख ही रहा है ऑलरेडी. ग्रैंड टोटल आपको अगर टाइम नहीं है ना तो मत करो तो चलेगा. ठीक है ना. लेकिन आपको कॉलम्स कौन से बनाने होते हैं, पर्टिकुलर शमा परवाना. अब शमा के नीचे उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड और परवाना के नीचे उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. और शमा के लिए दो कॉलम्स चाहिए, एक अमाउंट एक सीपीयू. परवाना के लिए भी सेम, एक अमाउंट इन सीपीयू. अब जैसे हम टिपिकली सम करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही सम करना है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट. उसके बाद मैम दो अमाउंट नहीं बना सकते. नहीं, दो अमाउंट यहाँ पर नहीं बना सकते. यहाँ पर मुझे एक ही अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा. ठीक है ना. यहाँ पर जो करना है इसी कॉलम के अमाउंट, इसी अमाउंट के कॉलम में आपको करना पड़ेगा.
सेम ऐसा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो है ना प्रॉब्लम बहुत क्लमजी लगेगा, ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत यहाँ वहाँ दिखेगी, ठीक है ना। आप देखो इसने ओके कितना नीट एंड क्लीन किया है, सारे अमाउंट्स शमा के इधर है, परवाना के इधर है, और सीपीयू आपको पता है कैसे निकालना होता है। So I will be waiting for 10 minutes and you guys will be solving this question. Everything is given. You just need to solve it step by step. प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है, देखो इसने भी ऐड किया है, ब्रैकेट में लिखा है 100% ऑफ वेजेस, आपको मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ऑब्लिक नेटवर्क्स कॉस्ट, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दिया हुआ है। अभी नेटवर्क्स कॉस्ट आपको मिल गया, तो ऑफिस ओवरहेड्स बोलता है 20% ऑन नेटवर्क्स कॉस्ट, तो 20% ऑन नेटवर्क्स कॉस्ट जितना होता है वो निकाल देना आप। उसके बाद सीपीयू आपको पता है कैसे निकालना होता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आप सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करोगे, जिसका सीपीयू दिया हुआ है 10-10, दोनों का 10-10, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। शमा के नंबर ऑफ यूनिट्स 4000 और परवाना के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 2400, दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई करना और आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर अमाउंट सेलिंग ओवरहेड्स का। ऐसे करके आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस पर ट्रांजिटर दिया हुआ है 175 200, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ यूनिट से अपने अपने, तो आपको प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। कितना इजी है देखो। चलो, आई वांट यू टू स्टार्ट इट, दिस इज द क्वेश्चन, कम ऑन स्टार्ट इट एंड दिस इज द फॉर्मेट, ओके, विल यू बी एबल टू डू इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So I'll be waiting for Yes, ma'am. 10 minutes and 10 minutes में मैं आपके आंसर्स पूछूंगी, okay? Okay, Okay? ma'am. Yes, is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, solve it. Yes, how much is done? Just 1 minute, ma'am. Okay. Come on, be quick. I need your answers. Done, ma'am. Done, ma'am. Done? Everybody's done? Yes, ma'am. Okay, very good. So you now give me answers, okay? What is prime cost of Shama? 3,20,000. Wait. 3,20,000. Very good. And what is prime cost of Parvana? 2,16,000. 16,000. Very good. So how much is your networks cost? 5 lakh. Very good. And what is CPU? CPU 6 lakhs. CPU of Shama. Networks cost का CPU. अच्छा CPU. Okay, 125. 125. और परवाना का 125. networks cost? मैम आपने क्या पूछा? परवाना का networks cost. 3,36,000. फिर से बोलो. 3,36,000. 3,36,000. Very good, very good. और उसका CPU? 140. ओके, अच्छा आपने मतलब ऑफिस ओवरहेड्स इसी पर ही 20% निकाला होगा, 5 लाख से Yes. 3,36,000. Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. So is it 1,67,200 office overhead? Yes, ma'am. Okay. Cost of production कितना आया? 6 lakhs. 6 lakhs. 6 lakh. और परवाना का? 4 lakh. 3,200. वेरी गुड. 200. चेक हियर, यहाँ पे भी वही आ रहा है, ठीक है, नीचे नीचे चेक करो। अच्छा आप मुझे बताओ सेलिंग ओवरहेड्स कितने आए? 40,000. और परवाना? 24,000. 24,000. ओके, सो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई सेलिंग ओवरहेड्स को 6 ऐड lakh. करने से? 6,40,000. 40,000. और परवाना? 4,27,200. वेरी गुड. सो सेल्स निकालने के बाद प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया होगा आपका yes 60,000. 60,000 and 16,000. 52,800 परवाना का. वेरी गुड. देखो यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं जो आपसे मैच कर रहे हैं,
इज इट फाइन? सबको समझ में आया कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मतलब हमने जो कौशिक किया हुआ है वो एक्चुअली पहले क्या था, एक ही प्रोडक्ट का था, तो हम एक ही प्रोडक्ट का सॉल्व कर रहे थे, अब दोनों एक साथ कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ जी। ओके मैम हाँ जी बोलो सुमन। मैम कॉस्ट ऑफ सुमन आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सुमन। यस सुमन आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तुम लोग को सुनाई दे रहा है उसका आवाज? नहीं मैम, ब्रेक हो रहा है उसका मैम आवाज एक्चुअली। सुमन आप एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, मैं वहां पे देख रही हूँ। सुमन अच्छा वो जब तक लिखे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Following is the profit and loss account for the year ended 31st March 2014 of Measure School and Comforts Limited, manufacturers of table fans. They are manufacturers of table fans. जैसे आपने देखा होगा ना टेबल फैंस होते हैं, एक ऊपर सीलिंग पे यस फैन मैम। लगा होता है, एक होते हैं टेबल फैंस, ठीक है ना? वो आपको पता होगा कैसे होते हैं टेबल फैंस, देखे होंगे आपने, ठीक है? दे मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2000 फैंस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी कितनी हुई है 2000 फैंस, आपने बेचे भी कितने 2000 फैंस, मतलब समझने वाली बात है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा कि नहीं होगा? नहीं रिपीट होगा करो ना मैम, मैम एक बार वेरी वापस। गुड, वेरी गुड, क्योंकि नहीं नहीं होगा होगा। सोल्ड मैम। एंड जितना मैन्युफैक्चर किया उतना ही यस सोल्ड किया। वेरी गुड सोल्ड किया। हलीमा, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चर किया उतना पूरा का पूरा उसने बेच दिया, मतलब 31 मार्च 2014 तक जितने भी फैंस बनाए गए थे, मैन्युफैक्चर किए गए थे, सारे के सारे बेच दिए गए। देयरफॉर देयर इज नो सच स्टॉक विच इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलूँ? जीरो फैंस, ठीक है? चलो आगे देखो। इन्होंने ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं जिसको पर्टिकुलर्स बनाकर, सॉरी पीएनएल बनाकर आपको दिया है, ठीक है? मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहते हैं, और यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, मतलब सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है सम में। अच्छा और क्या दिया है? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिए हैं, कुछ नहीं बोला तो ऑफिस में जाएगा अभी, क्योंकि नीचे पीएनएल में दिया है, ऊपर ट्रेडिंग में नहीं दिया है। यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हो गया, जीपी निकल गया ना, यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म। अब नीचे पीएनएल में दिया रेंट रेट्स एंड ऑफिस, तो पीएनएल में नीचे दिया है, ट्रेडिंग में नहीं दिया है, तो ये समझने वाली बात है ये ऑफिस का होगा। जनरल एक्सपेंसेस ये भी ऑफिस के होंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए जो मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट तो मैं खुद निकालती हूँ, ठीक है? टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस करके। अच्छा ये तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। 31 मार्च 2014 तक आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है, जिसे बोलेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट शीट, लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट शीट। लिखेंगे क्या? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना? लिखना भी उसको ऐसे ही है। अच्छा नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो क्या है देखते हैं। देयर एस्टिमेट्स, मतलब उन कंपनी जो कंपनी बना रही है ना टेबल फैंस, मेशर स्कूल एंड कंफर्ट्स लिमिटेड, उनके लिए बोला गया। तो कंपनी एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, पहले था 14, अब 15 नेक्स्ट ईयर,
आर एस अंडर। अब ये ना ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर मैंने नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन बढ़ाई तो मेरा खर्चा कितना बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स कितनी होगी। आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. मैम। ओके ओके गुड। अभी देखो 31 मार्च 2015 मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब एस्टिमेशन। हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पहले अगर मैं 2014 में कितने फैंस बना रही थी 2014 में? 2000 वेरी fans. गुड, मेरे कर्सर को देखो, 2000 फैंस। Yes. हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे 2000 फैंस, लेकिन अब अगर मैं 2015 में ज्यादा फैंस बनाऊंगी, 1000 ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, तो मेरा Hmm. खर्चा कितना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स कितना होगा, ये मुझे निकालने के लिए उन्होंने पूछा है। देखो देखो, देयर एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 आर एज अंडर। सबसे पहला, द प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड इंक्रीज टू 3000 फैंस। सबसे पहले तो उन्होंने ये शर्त रखी कि हमने की कितने फैंस मैन्युफैक्चर और सोल्ड करने हैं। मैम 3000. आवाज स्लो आ रही है आपकी। 3000. स्लो आ रही है। द प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड इंक्रीज टू 3000 फैंस। मतलब प्रोडक्शन कितनी बढ़ानी है? 1000 बढ़ा दी. वेरी गुड वेरी गुड, 1000 हजार। बढ़ानी है। मतलब टोटल कितनी बढ़ानी है? 3000. वेरी थ्री गुड थाउजेंड वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, पहले का 2000, अभी का 3000, 5000। रॉन्ग। ये जो वर्ड है ना इंक्रीज्ड टू, ये टू वर्ड को देखो, मेरे कर्सर को देखो, increased to 3000 तो 3000, increased by 3000 तो 2 + 3 5000। क्या आपने समझा इसका मतलब? Yes, ma'am. हाँ, हाँ आप मैम। यस मैम। बेसिक इंग्लिश समझो यस ना। मैम। बेसिक इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड टू 3000 मतलब इंक्रीज, हमने इंक्रीज किया 3000 तक, 3000 तक इंक्रीज किया, तो 3000 लिखेंगे ना, कॉमन सेंस। अच्छा, Yes, हमने ma'am. बोला इंक्रीज्ड बाय 3000 मतलब 3000 से बढ़ाया। से बढ़ाना है, 3000 हाँ, से बढ़ाना है. 3000 से बढ़ाया, तो 2 + 3 5000 बढ़ाया। समझ में आया? जो आपने पहले आंसर्स दिए वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट थी, 100% करेक्ट थी। मैंने आपसे पूछा कितना बढ़ाया, आपने बोला 1000, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, तो फाइनली कितना, टोटल कितना बढ़ाया? 3000। तो हमको देखना किसको है, 3000 को, ना कि 5 को। 5 वुड बी रॉन्ग। वैशाली आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है अभी। ठीक है। द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल पर फैन मतलब पर यूनिट। अभी यहाँ पे यूनिट का नाम बताया है, फैन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइसेस ऑफ द मटेरियल पर फैन वुड इंक्रीज बाय 20%। द लेबर कॉस्ट पर फैन वुड गो अप, अप मतलब बढ़ेगा, बाय 10%। द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस would remain in same proportion to material and wages in previous year। ठीक है। The selling and distribution expenses per fan would remain unchanged। Unchanged का मतलब होता है would remain same। सेम रहेगा, हाँ, चेंज पर नहीं फैन, होगा. पर फैन, हाँ, ये मतलब जो लास्ट ईयर का पर यूनिट था ना, वो अभी भी सेम रहेगा। The other expenses would remain unaffected on account of increase in the production। बेशक आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है 2000 से 3000 फैंस, बट स्टिल जो बाकी के एक्सपेंसेस है ना, जो यहाँ पे बताए नहीं गए हैं, जैसे एग्जाम्पल रेंट एंड रेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे अलग से नहीं बताए हैं एडजस्टमेंट में नीचे 2015 के लिए, वो अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड मतलब सेम, वो भी कुछ सेम भी रहेंगे। हाँ, उनको भी चेंज नहीं करना है। ठीक है ना? लेकिन हम यस देखेंगे, मैम. दो चीजें होती हैं, एक अमाउंट होता है, एक पर यूनिट होता है, तो किसको मैं सेम रखूं, वो मैं आपको सिखाऊंगी, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। प्रिपेयर अ ओके मैम. स्टेटमेंट ऑफ 2 years 13 14 एंड 14 15 शोइंग। क्या बताना है, कॉस्ट भी बताना है, प्रॉफिट भी बताना है, दोनों का पर फैन भी बताना है और टोटल अमाउंट भी बताना है। पर फैन मतलब पर यूनिट, दोनों के पर यूनिट भी निकालने हैं और टोटल कॉस्ट भी चाहिए और टोटल प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब अमाउंट।
गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। जितना हो सके कॉस्ट को ब्रेकअप करो, मतलब ब्रेकअप मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद ग्रॉस वर्क्स तोड़ो कॉस्ट के मतलब। बाद नेटवर्क्स कॉस्ट। हाँ, मतलब एक साथ मत दिखाओ, तोड़ तोड़ के। जो हमने सीखा है, हमने कॉस्ट के अलग अलग टाइप सीखे हैं ना निकालना। नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सीओजीएस के बाद टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट तक जितना भी आपने ब्रेकअप सीखा है ना कॉस्ट का, वो मुझे टोटल मैक्सिमम ब्रेकअप बताओ। जितना हो सका है कॉस्ट को ब्रेकअप करो। ठीक है, समझ में आया? मतलब वही बोल रहे हैं वो कॉस्ट शीट बनाओ। यस मैम। तो अभी आप पहले लिखो ऊपर से मेशर स्कूल एंड कंफर्ट्स लिमिटेड, और हम पहले 2014 का अलग से बनाएंगे और अलग से बनाएंगे 2015 का। ये देखो 2014 का इसने यहाँ बनाया है और 2015 का बिल्कुल अलग से नीचे बनाया। इसको हम एक साथ ही बना सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का हमने बना लिया एक साथ, वो चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्लमजी लगेगा बहुत। यस मैम। एस्टिमेटेड मैम कॉस्ट शीट एक अलग अलग बना 2000 लेना। का बनाना है और एक 2000 हाँ